के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन टीएजीसी नेट के नेट पर आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के। और आप सभी बच्चे लोग नेट की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, वेयर यू कैन प्रिपेयर योर फॉर नेट एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशंस आल्सो on the platform Fun Academy. Every Wednesday you will get a new batches from the our top educators, and also you have complete paper 1 and complete paper 2 with India's top educators. So do join. आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, so my name is Abhishek Shukla. I have more than 4 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of NTech commerce. मैं आपको डेली लाइव टीच कर रहा हूँ. This is my code. You can use this code to get 10% discount, and also you can unlock your special classes with totally free of cost. And also you have the paid subscriptions that is that categorized in the plus and iconic. So if you will take the plus subscription, you will get India's best educators with interactive live classes, structured courses, PDF and live test quizzes. And if you are taking the iconic courses, you will get India's best educators and these 4 courses, and also with personal coach, personalized doubt solving sessions, complete study material, SOP for interview preparation. These are the benefits if you are taking the iconic subscriptions. So guys, if you are taking plus subscription, you can use this code ABHI101, ABHI101, then definitely you will get instantly 10% flat discount. And if you are taking iconic subscription, then also you can use this code ABHI101, definitely you will get 10% discount instant. So these are the benefits which I have already told you all, and the page will open when you are getting to take subscription. You can see the validity with your prices. So don't forget to apply here this code abhi101. Okay, so these are the benefits which I have already told you. So upcoming specials and recorded specials, the students which did not join me yet, you can search my name Abhishek Shukla and you can join there. And also these are the batches which have been launched by this your top educators for commerce and complete paper 1, so you can join them. एंड ऑल्सो यू हैव लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डाउट सिली है, जो डाउट सिली विद लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है। आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और आपका प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम की स्ट्रेटेजी पूछ सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स है। आपका स्कॉलरशिप का बहुत ही बढ़िया इस समय चल रहा है। इफ यू आर इन रैंक 2 और 5 यू विल गेट लैपटॉप। आप सभी स्टूडेंट्स को अगर 2 से 5 रैंक में आते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा कंप्लीट। आपको अगर 6 टू सॉरी टॉप रैंकर में अगर आप आएंगे तो आपको 100% मतलब फर्स्ट, ठीक है, टॉप रैंकर में आएंगे तो आपको लैपटॉप और 100% बिल्कुल पूरा फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं। यह आपका 19 फेब से 26 फेब तक होगा। एंड साथ ही साथ 6 फेब से रैंक 5 अगर 6 रैंक से 15 तक आते हैं तो गिफ्ट वाउचर और आपको 5 गिफ्ट वाउचर 5,000 का और 50% स्कॉलरशिप, और 16 से 50 तक गिफ्ट वाउचर 2500 का 25% स्कॉलरशिप, और 51 से 100 25%। तो अभी आप लोग एनरोल कर लीजिए जिन्होंने एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं किया और स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो अभी आप लोग ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। तो सो दीज आर द बैचेस व्हिच हैव बीन लॉन्च्ड बाय योर टॉप एजुकेटर्स, सो यू कैन ज्वाइन देम, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मास कम्युनिकेशन है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके करवाए जा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग आए ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में इनको बैचेस को ज्वाइन करें। यू हैव आल्सो द बक्स बाउंटी। इफ यू आर हैविंग एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, you can claim in regards of your price you have, if any particular issue is there. So description box you will be having the Google form, you can fill that form to report the issue. And also you are having the special classes where you can get interactive live classes by your top educators, and also you are having the lower learners for polls for the learners, and you can raise your hand to ask any questions with your educators. And so don't miss your class. And also you are having the best of best lecture notes in the PDF. You can access classes from anywhere, anytime, and any devices. So let's start our class. So first question on your screen, that ICT stands for, ICT का मतलब क्या होता है? Information and Communication Technology, Information Control Technology, Information Capable Technology, and none of the above. So क्या आपका आंसर सही होगा?
रुक जाओ। चलिए, तो आप सभी लोगों का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस विल बी योर राइट आंसर। आईसीटी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यह एकदम बिल्कुल सही आंसर, जो कि बहुत इजी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आईसीटी की क्लास है। तो आईसीटी का अगर आप लोगों की क्लास है तो आईसीटी की तरीके से हम लोग देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको इसमें ज्यादा थोड़ा समय मैं देना चाहूंगा, ठीक है। सो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड एज वेल और आल्सो फॉर सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड्स। चाहे वो बहुत बहुत अलग अलग तरीके से आपका यूज किया जाता है आईसीटी के अंदर। आईसीटी का मतलब ही यही होता है कि आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टोरेज को रिट्रीवल। So which of the following is also termed as multimedia education? तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज मल्टीमीडिया एजुकेशन। चलिए, तो निम्नलिखित में से किसी मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो ये आपका आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। ऑब्वियसली जब ये आपको यहाँ सिंपल से लिखा है, जो एजुकेशन आईसीटी पे सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज आईसीटी समर्थित शिक्षा। So next question, you can see CBT stands for Central Basic Training, computer based training, computer basic test, या none of the above. So what will be your right answer? सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग है सभी को।
बेटा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क के चक्कर में आपको बीच में कोई भी आवाज ना जाए, कुछ भी जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे क्वेश्चन से या फिर मेरी आवाज से या फिर क्लास से, इसीलिए बीच बीच में मैं आप सभी बच्चों को म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस वजह से। तो उस समय मैं कंस्ट्रक्शन वर्क को रुकवा देता हूँ जिस समय मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, इस ये दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा मैनेज कीजिए आज। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी। जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे, जो आपका नेट का भी पेपर हो, मान लीजिए किसी का भी पेपर हो, है ना, नेट का ही पेपर हो या कोई भी पेपर हो रहा हो, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा रहता है योर पेपर विल बी हेल्ड एज सीबीटी फॉर्म, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। मतलब क्या, आपका कंप्यूटर के बेस्ड बिहाफ पे आपका ये टेस्ट होगा, क्लियर है, कंप्यूटर के हेल्प से। तो ये सीबीटी आपके देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स जितने भी होते हैं, या आपके इसी बिहाफ पे होते हैं, ठीक है, सीबीटी बेस्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी नेट का भी पेपर जो आपने दिया होगा या फिर देखा होगा, तो सीबीटी बेस्ड ही हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनपीटीईएल स्टैंड्स फॉर, जल्दी से फटाफट बताएंगे एनपीटीईएल का अर्थ क्या। सीबीटी का मतलब, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एक तरीके से समझिए कोर्स है। कोई भी चीज अगर आपके सिस्टम के अंदर जो डिलीवर किया जा रहा है सिस्टम के रिगार्ड्स में, या सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ यूज किया जा रहा है जिसके रिगार्ड्स में आपको कुछ डिलीवर किया जा रहा है, वो आपका सीबीटी होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। आंसर हो जाएगा दैट इज नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है, एनहेंस्ड लर्निंग, क्लियर है आप सभी बच्चों को, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, दिस विल बी योर राइट आंसर। सो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनपीटीईएल का फुल फॉर्म। क्लियर है, समझना है आप लोगों को क्या है साथियों, जो आपका सीबीटी का फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ही होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, बट मान लो आपको सिस्टम के द्वारा कुछ आपको डिलीवर किया जा रहा है, या फिर कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, मान लो कहीं जॉब करने आप जा रहे हैं, तो उस सिस्टम के द्वारा जो आपको डिलीवर किया जा रहा है, दैट इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जो कि आप कभी भी, जैसे मान लीजिए आर्मी हो गया या फिर पुलिस का हो गया या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप देखते हैं, वो तरीके से थोड़ा आपका प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग किया जाता है, राइट। और अगर आपको यही चीज कोई सिस्टम के द्वारा आपको अगर ट्रेनिंग दिया जाए या डिलीवर किया जाए, दैट इज सीबीटी, ठीक है, एक तरीके का कोर्स होता है जो कि आपको करवाया जाता है। क्लियर है एक तरीके से, आई होप सभी बच्चों को यह समझ में आ रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका एनपीटीईएल का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईओआर नेट का अर्थ क्या है, अर्नेट का, सॉरी, ईआर नेट का स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग रिसर्च नेटवर्क, एक्सटर्नल एंड रेगुलेटरी नेटवर्क, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, या नन ऑफ द अबव।
चलो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, शैक्षिक एंड अनुसंधान नेटवर्क आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ER नेट का ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, शैक्षिक और अनुसंधान नेटवर्क, ठीक है, ER नेट। चलिए, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान में ER नेट का उपयोग किया जाता है? अभी तो ER नेट का फुल फॉर्म पूछा, लेकिन अब यह पूछ रहा है कि ER नेट का यूज कैसे किया जाता है जब दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया होता है। IISCS, IITS या फिर नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान में ER नेट का उपयोग किया जाता है? IISCS, IITS या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र या फिर उपरोक्त सभी। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। ये सारे ही चीजों के लिए यूज किया जाता है जो हर एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, चाहे IISCS हो, चाहे IITS हो, चाहे फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हुआ, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही आपके आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन ICT के 4 बुनियादी आयामों में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सॉरी नहीं है शामिल। यही दिक्कत होता है कि हम लोग नॉट को, एक्सेप्ट को, विदाउट को पढ़ना भूल जाते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन द 4 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ICT के जो 4 बेसिक अगर डायमेंशंस हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा डायमेंशन है जो कि आपका शामिल नहीं है? ठीक है, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीट्यूड या फिर पर्सनल। तो क्या आपका आंसर हो कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रवैया या फिर कार्मिक? तो सी आपका बिल्कुल सही, एटीट्यूड। ठीक है, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनली, तीनों ही चीज ICT में आपको जरूरत होती है। बट अगर आप किसी प्रकार का रवैया रखते हैं, दैट इज नॉट अ पढ़ाई। वो तो इजी क्वेश्चन था यार, ये देखो सिंपल सी बात है, अलग ही लग रहा है। इसमें क्या आप लोगों को इसमें समझाया जाए या बताया जाए, है ना? तो एटीट्यूड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एटीट्यूड क्लियर है, सभी को क्लियर है? एटीट्यूड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन राइट the question in your notebook. Seriously, this question is most and most important for you all for in regards of examination. ई ज्ञान है, ई सरस्वती है या बृहस्पति है या नन ऑफ द अबव है? इनमें से कौन सा आपको लगता है जो कि ई लर्निंग डेवलप किया गया आपके IIT कानपुर के द्वारा? चलिए देखो एक्चुअली क्या है साथियों, आपको मैं बताऊं, ये देखो टाइम आपका 1 मिनट इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि पहली बात तो PPT में ऑलरेडी सेट होता है टाइमिंग, मतलब मुझे सेट करना पड़ता है। और दूसरी चीज आपको मैं बताऊं साथियों, ये 1 मिनट ऐसा है कि किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी क्वेश्चन में कम टाइम लग रहा है, तो ये एक एवरेज टाइम मैं लेके अभी से चल रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम 1 मिनट एक क्वेश्चन में आंसर में लगना, मतलब लग रहा है। बाकी मैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट आपको पेपर में भी देना, आपको कोशिश करना है कम से कम समय देना है, लेकिन कम से कम समय के चक्कर में ये नहीं करने देना है अभी आपको कि मैंने आपको बस टाइम 15 सेकंड दे दूं, 30 सेकंड दे दूं, फटाफट बिना सोचे समझे तुरंत यार टाइम खत्म ना हो जाए इससे पहले आंसर कर दूं मैं।
इस चक्कर में आप लोग गलत ना कर दें, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ें, आंसर्स को पूरे पढ़ें, मतलब जो ऑप्शन है उनको पढ़ें और अंडरस्टैंड करें कि कौन सा आंसर आपके कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके क्वेश्चन के साथ। तो यह अच्छा खासा आपको इसलिए टाइम दिया जाता है। क्लियर है? आई होप सो ये आपको समझ में आ गई होगी बात है। चलिए, तो सी बृहस्पति है जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा ई लर्निंग सोर्स ऑफ ई लर्निंग डेवलप किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वीसीआर पर एक टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है। रिकॉर्डिंग ऑफ अ टेलीविजन प्रोग्राम, कोई एक प्रोग्राम अगर आ रहा है वीसीआर, तो उसका किसका टाइम शिफ्टिंग, कंटेंट कॉन्फ्रेंस, या मैकेनिकल क्लैरिटी, या मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। क्या पूछा है? रिकॉर्डिंग अ टेलीविजन प्रोग्राम ऑन अ वीसीआर, किसी वीसीआर पर अगर आप किसी टेलीविजन प्रोग्राम को अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साथियों आपका क्या उदाहरण है उसका? जैसे देख सकते हैं टाइम शिफ्टिंग, कंटेंट रेफरेंस, मैकेनिकल क्लैरिटी, या फिर मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। चलिए, तो आपका यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए, टाइम शिफ्टिंग होता है। क्या होता है? टाइम शिफ्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विश्वविद्यालयों में आईसीटी अपनाने में मुख्य चुनौती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन चैलेंजेस? चैलेंजेस भाई क्या है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी आईसीटी को अडॉप्ट करने में बहुत दिक्कतें आ रही है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस, तकनीकी तैयारी की कहीं ना कहीं कमी है, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इनिशिएटिव्स, या बहुत गलत तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं आईसीटी के प्रति इनिशिएटिव लेने में, या लिंग्विस्टिक बैरियर, या ना ऑल ऑफ द अबव, या सारे ही। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। ये सारे ही आपके कहीं ना कहीं आईसीटी के अंदर अगर एडॉप्ट कर रहे हो इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस आता है कि आईसीटी के इनिशिएटिव को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर आ रहा है, भाषाई कहीं तरीके से बाधा आ रहा है, या टेक्नोलॉजी रेडीनेस के कहीं ना कहीं तकनीकी तैयार नहीं हो पा रहे उतने अच्छे से। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी को अच्छे से वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप को अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये बताइए लैपटॉप वो आपके लिए बेकार है? किस काम में? वो बिल्कुल बेकार है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी रेडीनेस भी की भी दिक्कत आ ही रही है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज आर द यूज्ड ऑफ फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा संस्थान उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर उपयोग किए जाते हैं? एक्सेस, इक्विटी, रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अब।
चलिए, तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे ही तीनों ही आपके चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर। चलिए, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन के अंदर अगर चीजों को आप बढ़ा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सेस ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें, आपको इक्वालिटी और साथ ही साथ संसाधन का ज्यादा से ज्यादा इस चीज का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ये तीनों ही चीजों का, ठीक है, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो टीकेडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से। चलिए फटाफट आंसर करें, टीकेडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेडिशनल लैंग्वेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, या फिर ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल। चलिए, तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? Sending and receiving messages signals occurring at the same time is denoted by synchronous, asynchronous, both A and B, and none of the above. So क्या होगा आंसर? चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है, सिंक्रोनस आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, बोथ सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, या फिर नन ऑफ द। So A will be your right answer, that is synchronous technology. Video conferencing is an example for the तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, और you can say you video conferencing जो example है वो किसका है? synchronous technologies का example बनता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीडी के माध्यम से शिक्षा के काल पाठ में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू सीडीज? तो बी आपका बिल्कुल ए सिंक्रोनस होगा, ठीक है। जैसे कि हमने वो देखा, आपका उसका सिंक्रोनस हो गया, इसका ए सिंक्रोनस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? डिजिटल डिवाइड इज द टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन द यूज ऑफ आईटी और आईसीटी इन। डिजिटल डिवाइस शब्द का प्रयोग आईटी आईसीटी के उपयोग में विभेद के संदर्भ में किया जाता है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, अर्बन एंड रूरल इंडिया, या फिर बोथ एंड बी, या नन ऑफ दी। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही सही है। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। हाइपर मीडिया डेटाबेस सूचना बिट्स को रूप में संग्रहित किया जाता है। इन द हाइपर मीडिया डेटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, क्यूब्स, नोट्स या फिर सिंबल्स। क्या होगा? ओनली 5 सेकंड्स बचे हुए हैं, जल्दी से फटाफट आंसर करें सभी बच्चे। चलिए, ए आपका बिल्कुल सही आंसर, सिग्नल्स। जल्दी से फटाफट आंसर करें, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपकी दूसरी क्लास भी होनी है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, communication band with that has the highest capacity and used by the microwave cable and fiber optics line is known as hyperlink broadband bus
तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। ना लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसमें एक छोटा सा टेक्स्ट है, ग्राफिकल विज्ञापन संदेश होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक जल्दी बताएं। एन इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड दैट हैज अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रेफर टू एज बुलेटिन, स्ट्रैप, ब्रिज लाइन, बैनर। करवाया हुआ आपको क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रैप होता है इसका मतलब। अब इसके बाद अब आपको चलते हैं नेक्स्ट अब आपकी क्लासेस में। तो आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अब किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं साथियों। किसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी 101 का कोड इसके इस्तेमाल जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में करेंगे, और साथ ही साथ आप सभी बच्चे लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाए। कोशिश करना है कि साथियों जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अभी 101 यहाँ पे कोड जरूर इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया लाइक शेयर भी कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चे लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना व्यक्तित्व व्यवहार बहुत बढ़िया से बना के रखें, समाज में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी का उत्पन्न हो, यह आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जानदार से जोरदार से शानदार सी क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।